Welcome student. Today I am going to solve some NCERT example of chapter number 2. The first example is example number 1 2.1. It is given calculate the potential at a point P due to charge 4 into 10 to the power minus 7. This is charge is given Q is equal to 4 into 10 to the power minus 7 coulomb, located at 9 centimeter away. 9 centimeter. This is distance. This is A part. Exercise number 2.1 है आपका. This is A part. It is given a charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb. We have to find the potential at 9 centimeter away from this charge. Okay. After that we are going for second part. Now we are know that potential is equal to क्या होता है KQ upon R. Put the value, get the answer. K 9 into 10 to the power 9. Q 4 into 10 to the power upon R 9 centimeter, 9 into 10 to the power minus 2. Is that clear? 9 is cancel. ये हो जाएगा 4 into 10 to the power 2 upon 10 to the power minus 2. That means 4 into 10 to the power 4 volts. This is the first answer. And the B part, it is given that B part is hence obtain the work done in bringing a charge 2 into 10 to the power minus 3 coulomb from infinity to point P. यानी जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल चार्ज जो है आपका 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to that point. From infinity to that point we have to find out work done. Work done is equal to क्या हो जाएगा बेटा, Q तो आएगा ये वाला Q चार्ज, और यहाँ पे पोटेंशियल कौन होगा, जो पहले से चार्ज बैठा हुआ वो पोटेंशियल लगाएगा. तो W इक्वल टू Q की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, V की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 4. W इक्वल टू 4 टू जा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. इज दैट क्लियर? इट इज जूल. This is very simple problem and only put the value and get the answer. Now we are moving towards next example, which is example number 2.2. Example number 2.2, it is given two charges 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. यानी एक चार्ज है आपका 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and other charges minus 2 into 10 to the power 8 coulomb are located 15 centimeter apart. The distance between them is 15 centimeter. Okay. The question is, at what point on the line joining the two charges is electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0. कह रहा है at what point on the line joining the two charges is electric potential 0. Take the electric potential is 0 at infinity. इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर देंगे बेटा, इस पर एक्सटेंड कर देंगे. यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल होंगे, दोनों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे. एक तो पोटेंशियल कहाँ पे 0 हो सकता है, बीच में मे बी, और एक क्या होगा आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस. या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है. बीच में क्यों होगा,
क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा तो बीच में कहीं पोटेंशियल ज़ीरो होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मान लो पहले केस में बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग आर टू चार्जेस, इसके बीच में पहले निकालेंगे। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा है C जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, सपोज दिस इज A, दिस इज B। यहाँ से जो पॉइंट है कितना डिस्टेंस पे है, x पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, सिंपली 15 माइनस x। इज दैट क्लियर? तो कर दो, ये यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा, दिस इज V1 सपोज और दिस इज V2, दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। कर दो, तो टोटल V इक्वल टू क्या है, ज़ीरो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको x फाइंड आउट करना है, कितने डिस्टेंस पे होगा वो, तो कर लेते हैं। V1 प्लस V2 इक्वल टू ज़ीरो, V1 क्या हो जाएगा K Q 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपान R, R की वैल्यू क्या होगी बेटा, x प्लस K Q, Q की वैल्यू क्या है, -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 15 माइनस x। यहाँ x को सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -2 यहाँ करोगे तो दोनों उधर जाकर कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकालते थे तो डायरेक्शन लेते थे, यहाँ पे डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चार्ज जिस पोलरिटी के साथ होगा उसी पोलरिटी के साथ फार्मूले में पुट कर देंगे। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा बेटा, K 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपान x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। K 2 इंटू 10 टू द पावर -8 अपान 15 माइनस x। इज दैट क्लियर? K कैंसल, 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी आपका बचेगा 3 अपान x इक्वल टू 2 अपान 15 माइनस x। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x, x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी A से कितने सेंटीमीटर पे होगा, 9 सेंटीमीटर पे वो पॉइंट C होगा जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। नाउ वी आर डिस्कस सेकेंड केस, टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी दूसरे केस के लिए डिस्कस करेंगे, रब कर दें इसको। Suppose this point C is outside the line joining between two charges। एक बाहर भी होगा, लेकिन वो बाहर कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमेशा वो बाहर वाला जो पॉइंट होगा, द पॉइंट विच इज लाई आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, इट इज ऑलवेज टेकन टू द स्मॉलेस्ट चार्ज इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड कम है, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यानी 3 और 2 में कौन कम है, 2 कम है। तो वो पॉइंट हमेशा, ये रूल्स है आपका, वो कहाँ पे लेंगे, यहीं पे पोटेंशियल ज़ीरो आएगा, इस साइड नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर चार्ज, लार्जर चार्ज कंपेयर टू दिस। तो हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर आउटसाइड का पॉइंट आपको पूछ देगा कि जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है,
तो आप क्या करोगे, वो पॉइंट हमेशा अज्यूम करोगे नियरर टू स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मान लेते हैं वो पॉइंट सी है, ये डिस्टेंस मान लो कितनी है बेटा, x। तो एक बार ये पोटेंशियल लगाएगा बेटा और एक बार ये पोटेंशियल लगाएगा, दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। लिख लेते हैं v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। v1 की क्यू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपान r की वैल्यू इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, x की क्यू अपान ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपका, ये x है बेटा, ये 15 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 15। इज दैट क्लियर? ये पूरा x है, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दैट्स वाई दिस डिस्टेंस इज x माइनस 15 सेंटीमीटर। Okay, now again this minus is multiplied with this positive, again it will becomes negative, it is transferred to right hand side, it becomes positive. Now key 3 into 10⁻⁻8 upon x plus key 2 into 10⁻⁻8 upon x minus 15 इज इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा पॉजिटिव, के कैंसिल, दोनों कैंसिल, 3 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 अपान एक्स माइनस 15, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। And this null point where potential is 0 is 45 centimeter from the charge A. Is that clear? तो इनसाइड की भी पॉसिबिलिटी बनती है, आउटसाइड की। अगर दोनों फाइंड आउट करना होगा तो दोनों कर लेने का, जो भी क्वेश्चन में आस्क होगा। अगर कोई एक फाइंड आउट करना होगा तो इनसाइड होगा तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट, आउटसाइड होगा तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया इसको। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज गिवन 2.4. 2.3 is a theoretical type, that's why we are going to 2.4. which is very important question. The question is okay 2.4. It is given 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD of side D as shown in the figure. ये फिगर आपका गिवन है बेटा, दिस इज स्क्वायर, इट इज ऑफ साइड D, दिस स्क्वायर इज ABCD as shown in the figure. फिगर एग्जाम में दिया रहेगा। ओके, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। हमको पहले पार्ट में पूछा है ऑल द चार्जेस आर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस वन इज माइनस क्यू। ओके, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ये हमको निकालना है, तो फाइंड आउट करना है बेटा। तो वर्क का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है टू दिस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। 2 चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए, तो पहले एक आता है W1 0, दूसरा आएगा B पे तो W2, ये पोटेंशियल लगाएगा। सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट वी अज्यूम
ऑल चार्जेस एट इंफिनिटी। ये आपको मानना ही पड़ेगा, दिस इज कंसेप्ट। ओके, नाउ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्लस क्यू, ये वाला चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। पहले इसको लाएंगे इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो वर्क डन W1 इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि पहले से सब लोग इन्फिनिटी पे हैं, पहले से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसके इर्द गिर्द अगल बगल नियर अबाउट, तो पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, दैट्स वाई वर्क डन इज 0। इज दैट क्लियर? सेकेंड, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग second charge that is minus q from infinity to point b पे लाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा W2 इक्वल टू, देखना बेटा आ कौन रहा है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू को बाहर रखेंगे ब्रैकेट में। पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये लगाएगा जो पहले से आ चुका होगा, के क्यू अपॉन डी, के क्यू अपॉन आर होता है, तो यानी दिस इज बिकम्स माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। इसी तरह से आपका वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग थर्ड चार्ज which is plus q from infinity to point C। इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद रब करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, क्या हो जाएगा W3 इक्वल टू आ कौन रहा है बेटा C वाला प्लस Q, उसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। पोटेंशियल कौन लगाएंगे, अब ये दोनों पहले से यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये भी पोटेंशियल लगाएगा इस पे और ये भी पोटेंशियल लगाएगा इस पे। कंसेप्ट समझो, तो पहले ये वाले का पोटेंशियल लिख लेते हैं, फिर बी वाले का पोटेंशियल इस पॉइंट पे लिख लेंगे। देखो कि क्यू अपान आर, आर का मतलब ये डिस्टेंस डॉटेड लाइन वाले डायगोनल, क्या हो जाएगा बेटा d√2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर प्लस, अब ये वाला पोटेंशियल लगाएगा बी वाला यहाँ पे पी पॉइंट सी पे। इज दैट क्लियर? दिस पोटेंशियल इज कि माइनस क्यू अपॉन डी, it will becomes, now we break the bracket, kq square upon d√2 माइनस kq स्क्वायर अपॉन, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस में माइनस का माइनस हो जाएगा बेटा, kq स्क्वायर अपॉन डी। यहाँ तक क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट, नाउ वी आर ओके। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यहाँ पे रब कर लेते हैं बेटा, ये वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ सेम लिखेंगे, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, कहाँ पे लाना है हमको, पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी पे लाना है, यानी अब इसको लाना है इन्फिनिटी से पकड़ के। तो देखना बेटा W4 इक्वल टू कौन आ रहा है माइनस क्यू। अब ये पहले से 3 आ चुके हैं, तो तीनों पोटेंशियल लगाएंगे बारी बारी, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो रख देते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, के क्यू अपॉन डी हो जाएगा प्लस
बी वाले की बात कर लेते हैं पोटेंशियल की, के माइनस क्यू अपान डी रूट टू डायगोनल है। फिर उसके बाद तीसरे वाले की बात कर लेते हैं बेटा, प्लस के क्यू अपान डी, ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर दो, माइनस के क्यू स्क्वायर अपान डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपान डी रूट टू प्लस प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपका माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। नाउ वी आर फाइंड आउट W1, W2, W3 and W4. Now the total work done to arrange this system according to the figure is written as, टोटल W क्या हो जाएगा बेटा, फिगर से कोई मतलब नहीं, इसको रब करते हैं। It is becomes total W equal to total work done to arrange the system according to figure क्या हो जाएगा आपका, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 रख देते हैं। W1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 0 प्लस W2, इसको डायरेक्ट रखोगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, W3 क्या हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। फिर उसके बाद क्या हो गया W1 प्लस W2 ये हो गया बेटा, W3 हो गया प्लस W4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो डायरेक्ट रखो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। इज दैट क्लियर। अब सबको रब कर देते हैं, 20 को सॉल्व करके अरेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हियर W इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, माइनस 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, समझ में आ रहा है। और डी रूट टू हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू। इज दैट क्लियर। मैं क्या करता हूँ बेटा, W इक्वल टू के क्यू स्क्वायर को कॉमन कर लो, अपॉन डी को कॉमन कर लो, चाहो तो 4 को भी कॉमन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। के क्यू स्क्वायर अपॉन डी को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा इधर कितना -4 प्लस 2 अपॉन रूट 2। ओके, रैशनलाइज कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर दोगे नहीं, इतना ही लिख के छोड़ दोगे आंसर हो जाएगा। लेकिन बुक का आंसर आपको निकालना होगा, तो के क्यू स्क्वायर अगर निकालना चाहते हो तो ये आंसर सही है आपका, अपॉन डी। अगर रैशनलाइज करोगे तो हो जाएगा -4, इसको रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा, प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। के की वैल्यू रख दो बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये हो जाएगा -4 प्लस रूट 2। दिस इज कंप्लीट आंसर। इज दैट क्लियर ऑफ पार्ट 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 2, which is very easy. Part 2 is given. It said that a charge Q naught is brought to the center E of the square, the 4 charge being held fixed
at its corner. What is extra work done? What is, पहले से ये फिक्स है कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इस तरह का है। एक पॉइंट ई है सेंटर पे, हम कितना ला रहे हैं बेटा, क्यू नॉट चार्ज। टोटल वर्क डन, व्हाट इज द टोटल वर्क डन, इट इज 0। इज दैट क्लियर? दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस, इज दैट क्लियर? तो टोटल वर्क डन विल बी कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि पहले से ये चारों चार्ज क्या है, फिक्स हैं। तो इस पे पोटेंशियल लगाएगा माइनस में प्लस में, तो ये प्लस हो गया, सपोज ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया। 2 टाइम प्लस 2 टाइम माइनस, व्हाट इज रिजल्टेंट, इट विल बी 0। Is that clear? Now we are moving towards next questions, which is next is 2.5, which is given determine the electrostatic potential energy of a system consisting 2 charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb ब्रैकेट में दिया with no external field placed at माइनस, ये आपका 7 माइक्रोकूलम है बेटा, दूसरा -2 माइक्रोकूलम है। एक का कोऑर्डिनेट है आपका, ये सपोज हो रही 9 0,0, दिस इज सेंटीमीटर है बेटा, दिस इज -9, 0,0, दैट मीन्स दीज 2 चार्जेस आर लाई ऑन एक्स एक्सिस, वन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सेकेंड वन इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला क्या होता है, अभी निकाला। इसके पहले मैंने सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए क्या बताया था आपका, ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपान R12, R और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बताया था, तो उसमें पहले मैंने बताया था सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए, फिर 3 चार्जेस के लिए। 2 चार्जेस के लिए फार्मूला, क्योंकि इसको जब इन्फिनिटी में फेंकोगे, इसको जब लाओगे इन्फिनिटी पे डाल दोगे, फिर इसके बाद जब इसको लाओगे तो वर्क डन क्या होगा 0। जब इसको लाओगे तो ये पहले से आ चुका होगा Q1 ब्रैकेट के बाहर, ओके, ये माइनस, ऐसे समझ लो। क्लियर नहीं हो रहा है तो Q1 है, ये मान लो क्या है Q2 है, मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या R12 है, इन्फिनिटी पे कर दिया शुरू में। पहला आया तो वर्क डन क्या होगा 0, दूसरा आएगा तो क्या होगा, ये पहले से आ चुका होगा तो Q2 को बाहर, ये आ रहा है तो बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, और ये पोटेंशियल लगाएगा कि Q1 R12, इसलिए फार्मूला बन जाता है कि Q1 Q2 अपन R12, क्योंकि ये तो W1 प्लस W2 करोगे तो ये तो 0 ही है। इज दैट क्लियर? ओके, देखो कि 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 7 × 10⁻⁻⁶, Q2 -2 × 10⁻⁻⁶। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 स्टेप इधर चलोगे, 9 स्टेप इधर, टोटल कितना हो जाएगा 18 × 10⁻²। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा आपका 9 × 2 = 18, कैंसिल हो जाएगा बेटा, और हो जाएगा W = 7 × 9 -12 है आपका, ओके, 10⁻², ये माइनस इधर आगे आ जाएगा, देखो ये माइनस इधर आगे आ जाएगा आपका,
ये हो जाएगा -7 इंटू 10⁻⁻1, दैट मीन्स -0.7 जूल. Okay, now we are moving towards next part, which is in the present of external electric field. E part is given how much work is required to separate the two charges infinity away from each other. अरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट किया, तो कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया, तो कितना वर्डन करना पड़ा, -0.7 जूल करना पड़ा लाने में. अब बोल रहा है कि उसको फिर से इन्फिनिटी पे सेपरेट करने में कितना वर्डन होगा. नेगेटिव को क्या कर दोगे, दिस इज आंसर. भाई लाने में -0.7 जूल लगा, फिर वहाँ पे पहुँचाने पे क्या होगा, उसका अपोजिट 0.7. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड पार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पार्ट इज, it is given suppose that same system of charges is now placed in an external electric field E equal to A upon R square, where A की वैल्यू है आपकी बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर -2. Okay, what would be electrostatic potential energy of this configuration will be. तो मैंने क्या फाइंड आउट किया था, मैंने बताया था जब फार्मूला डेराइव किया था एक्सटर्नल के लिए प्रीवियस में, वो फार्मूला होता है Q VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपान R12. ये फार्मूला था आपका टोटल एनर्जी, ये फार्मूला होता है. जब मैंने बताया था सिस्टम ऑफ टू चार्जेस वी हैव टू फाइंड आउट, मैंने बताया था वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच इज़ इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये फार्मूला बनता है, ये तो बनता ही है, ये दो एक्सटर्नल की वजह से एग्जेंट आ जाते हैं. तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से बेटा. Q1 V1 को क्या लिखते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस. V इक्वल टू E इंटू डी का मतलब R, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस R के टर्म्स में दिया है, तो V इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा बेटा. आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपान आर बचेगा, ए अपान आर R1 प्लस Q2 ए अपान R2. इज दैट क्लियर, प्लस की Q1 Q2 R12. सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा अपना. क्या होगा उसको देखो बेटा. Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10⁻⁻6. ए की वैल्यू दिया है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹. R1 -9. ओके, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू 10⁻⁻6. ए की वैल्यू है आपकी 9 इंटू 10⁻⁹. अपान पोजीशन वेक्टर इज 9 इंटू 10⁻⁻2 प्लस ये वैल्यू तो हम फाइंड आउट किए हैं, कितना है, -0.7 जूल. इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा. V इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻6 9. सॉरी दिस इज पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. दिस इज डिस्टेंस. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए अपान आर स्क्वायर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव.
this is the position, distance from origin is this minus 9 centimeter shows only it is minus negative directions, and distance is always taking in mod, it is always positive 9 and 9. ओके, इसको सॉल्व करोगे आप, it will becomes V equal to U electric potential energy, U is equal to 9 कैंसल, ये हो जाएगा आपका 70 माइनस यहाँ पे 9 कैंसल बेटा, ये हो जाएगा -20 माइनस 0.7 एंड सॉल्व, गेट द आंसर. ओके, समथिंग 49 समथिंग कुछ भी आएगा, उससे हमको मतलब नहीं है. तो इस तरह से सॉल्व करते हैं. टुडे आई सॉल्व 5 क्वेश्चन, 2.1, 2.2, 2.3, 2.54 क्वेश्चन. ओके, आफ्टर दैट वी आर सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस. आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.